जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਲਮੀਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੋ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਵੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਚ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਰ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਿਆਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਸਵਾਭਿਮਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਤੇ ਅਸਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਮੋ ਸ਼ੂਦਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੈ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਜੈ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕੀ ਜੈ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਮ ਬੰਗਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ੂਦਰਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਮੋ ਸ਼ੂਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਿਆਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ 2 ਡ੍ਰੌਪ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਸੇ ਚਿੜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਰਸ਼ੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਿਸ਼ਨੇਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਦਾ। इसमें ना मैं एक तो पहले इजाज़त चाहूँगा हिंदी में बात करूँ, जी क्योंकि मीडिया है यूनिवर्सल, जी है ना, तो पंजाब के बाहर बैठे लोग भी इसका लाभ ले सकें। जी दूसरा, आपका जो सवाल है ना, कई बार ना सवाल मेरा और आपका नहीं होता, कई बार सवाल विरोधी लोग डाल देते हैं। जी क्या कई बार बच्चे माँ को आके पूछते हैं कि मेरी माँ कौन जी है ना, जी तो माँ हैरान हो जाती है भी ये सवाल किसने डाल दिया। वो कोई ना कोई उसको बच्चे को शरारत करता है। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु नानक देव जी, जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कालू राम मेहता के बेटे थे, खत्री लिखा गया है, मगर जाट सिख ने कभी सवाल किया कि गुरु नानक देव से हमारा क्या संबंध है? जी क्यों बिल्कुल। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने अभी तक उनके दिमाग में डाला नहीं। डाला नहीं। ये कुछ लोग ना एक गंदे मन से, गंदी सोच से सवाल पैदा कर देते हैं। तो हमारे बीच में जानबूझ के सवाल पैदा किया गया कि परमात्मा वाल्मीकि महाराज के हाथ में, अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ सवाल जी। को, वो तो और गंदे तरीके से कहते हैं। जी वो कह रहे हैं उनके हाथ में कलम है, आपके हाथ में झाड़ू है, बिल्कुल जी। आपका रिश्ता क्या? अब गुरु नानक देव जी का रिश्ता कभी कभी उनको हल चलाते तो दिखाया गया जी है ना, जी मगर जो बाजार में बैठा दुकानदार है, जी जिसकी ट्रांसपोर्ट है कलकत्ता में सिख की, उसने सोचा मेरी ट्रांसपोर्ट से गुरु नानक देव जी का क्या संबंध है, बिल्कुल जी। मेरी बजाजी की दुकान से गुरु नानक देव जी का क्या संबंध है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी से चलो हमारी भूमि पे हुए, जी भारत की सरजमी पे हुए हैं। अब हजरत मोहम्मद और हजरत ईसा, जी वो तो भारत में पैदा ही नहीं हुए, बिल्कुल जी। बिल्कुल दूर पैदा हुए हैं। और दूर पैदा होने वाला जब यहाँ आदमी ईसाई बनता है, कभी सवाल करता है कि ईसा से मेरा क्या संबंध है, बिल्कुल कभी हजरत मोहम्मद से करता है। असल में संबंध होता क्या है, अगर वो सवाल मैं करूं तो फिर मेरी जो वाल्मीकि कौम का एक दुखांत है, इस पे हो सकता लोग नाराजगी जी। प्रकट करें। मेरी कौम का ये दुखांत है कि मेरी कौम का सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कोई संबंध नहीं। जो सही जवाब है, सवाल है। सही जवाब, सही जवाब क्या है कि भारत के मुसलमान का हजरत मोहम्मद से क्या संबंध है कि हजरत मोहम्मद ने जो कहा जी वो उसे मानता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा 5 वक्त की नमाज, वो मानता है। उन्होंने कहा सुन्नत करनी है, वो मानता है। ऐसे ईसा से संबंध है, ऐसे बाकी महापुरुषों से संबंध होता है। हम जिसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, मानते हैं, हमारा संबंध उससे जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो इस आधार पर अगर मैं कहूँ तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाएं तो दूर, हमने तो अभी उनके ग्रंथों को खोला ही नहीं, बिल्कुल जी। हमने खोला नहीं। हम जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से नंगे पांव चल के वो पीर निगाहे, नैना देवी, वैष्णो देवी, वो बालकनाथ, गुग्गा और बहुत सारी देवियाँ, कई कुछ है, जितनी आस्था से वहाँ जाते हैं, हम वाल्मीकि तीर्थ तो जाते ही नहीं थे। बिल्कुल जी। ये तो अभी कुछ सालों से प्रचार हुआ तो लोग जाना शुरू हुए, जी नहीं तो वाल्मीकि तीर्थ का हमारे साथी इस बात के गवाह हैं। अभी 10 साल पहले तक वाल्मीकि तीर्थ पे प्रगट दिवस पे लाइटें नजर नहीं आती थी। बिल्कुल ये सच है। ये सच है, आप भी कहते हैं और भी लोग कहते हैं, मानते हैं। जी ये तो प्रचार हुआ, लोग जाना शुरू हुए। हमारे लोग तो दूसरी जगह जाते थे, और जहाँ दूसरी जगह भी जाते थे, अब मैं और एक और कड़वी बात कहने लगा हूँ, जहाँ दूसरी जगह भी जाते थे शिक्षाएं वहाँ के भी नहीं मानते थे।
ये भी बात कर सकते इनका तो हैं। शॉर्टकट था, सिर्फ जाना ही होता है बस। मत्था टेक दिया, मैंने 100 रुपया आपको दे दिया, अब आपने काम करना है मेरा, मेरे लड़के की नौकरी लगवा देना, मेरी लड़की का रिश्ता करा देना, मेरा मकान बनवा देना, मेरा वीज़ा लगवा देना। हमारा तो इतना ताल्लुक था। हमारा ताल्लुक सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से शिक्षाओं के तौर पे रहा नहीं। और उसका एक और दुखांत ये हुआ, ये नहीं कि प्रचार नहीं हुआ, जी प्रचार किया, नवल जी महाराज ने प्रचार किया जी राजस्थान, और आज पाकिस्तान का जो कराची है वहाँ तक उनके फॉलोवर है। ऐसे ही बाबा खाकशाह जी ने लाहौर से शुरू किया, जी पूरा उत्तर प्रदेश में उनके फॉलोवर हैं, जी उनके बनाए हुए स्थान भी वहाँ हैं। गुरु ज्ञाननाथ जी ने किया, और बहुत सारे नाम है, बाबा शंकर दास जी है, संत केशवदास जी हैं, जिन्होंने सब ने प्रचार तो किया, मगर हमने क्या किया? हम अजीब मानसिकता, पूरा भारतीय हम ही नहीं है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि कबीर साहब ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो हम कबीर साहब को पकड़ लेते हैं। जैसे सीढ़ी लगी है छत के साथ, हम सीढ़ी पकड़ लेते हैं। असल में सीढ़ी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। सीढ़ी के डंडे चढ़ो, यानी कि कबीर को फॉलो करो, उनकी शिक्षाओं को समझो, आगे बढ़ो, महामुनि शंभू की बातों को पढ़ो, मगर आगे जाके सीढ़ी छोड़ेंगे तो छत प्राप्त होगी। सीढ़ी पकड़े रहोगे तो सीढ़ी पे अटके रहोगे। तो उस छत पे वो जो आसमानी बाप, आसमानी छत का पिता है, जिसको हृदय गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं, हम वहाँ तक जा ही नहीं रहे। एक और अजीब चीज़ देख रहा हूँ, और उसमें मैंने बहुत लोगों को डांटा भी है। जैसे आप अपने गांव से कहो भी वाल्मीकि तीर्थ के लिए मैं अपनी कमाई से बस लेके जा रहा हूँ, जी। आप सिर्फ बैठ जाओ, जी फ्री। जी फ्री पे भी आके आपको शर्त लगाएंगे कि बॉर्डर ले जाओगे, वहाँ भी जाना है, जलियांवाला बाग ले जाओगे, तब तो बैठ। यानी फिर हमारी श्रद्धा कहाँ है? घूमने में है, सिर्फ जाना। हमारी श्रद्धा परमात्मा में नहीं है। तो मुझे कई बार औरतों ने सवाल किया आके कि जी माँ सीता की आप कहते हर इच्छा पूरी हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? तो मैंने कहा माँ सीता ने सिर्फ वाल्मीकि तीर्थ, वो जंगल था जो आज नेपाल में है, जानवर थे, तब भी वाल्मीकि तीर्थ चुना। आप वो नहीं चुनते, आप पहले बॉर्डर चुनते हैं, बल्कि और भी चुनते हैं। अगर वहाँ रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ जरूर होके आना है, और वो दावत तैयार रखेंगे। और हमारी दावत कौन सी होती है? यानी जाना वाल्मीकि तीर्थ। जिस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने करोंच के मरने को बर्दाश्त नहीं किया, हम रिश्तेदारों के यहाँ उस मांस मछली की दावत खाने जाते हैं, तो फिर हमारी माँ सीता की तरह इच्छाएं कैसे पूरी हो? बिल्कुल जी, वो तो बड़े बड़े महलों में रहने वाली थी, फिर भी उनकी आस्था वहाँ थी। आस्था चुनी उन्होंने। मुझे ना हिंदी बोलने में साहब जी थोड़ी कोई प्रॉब्लम बात है। नहीं। एक सवाल है, और ये सवाल जैसे हमारे लोग कहते हैं कि हमारा वाल्मीकि दयावान से क्या रिश्ता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ना इस बात को अनसुना कर दिया, चाहे पढ़ा नहीं, चाहे किसी संत ने, जैसे आप बोल रहे हो, महात्मा हो, चाहे उनकी संगत नहीं की, उनसे नहीं सुना कि उन्होंने भारतीय मूल्यवासी लोग जो कुशीलवी समाज था अपना, या और भी कई हो गए जिनके नाम इतिहास से हटा दिए गए, उन्होंने बहुत सारी कलाएं उनको दी, सिखाया, उनको संगीत सिखाया, कुछ और चीज़ें सिखाई। जैसे संगीत में हमारे लोग बहुत माहिर हैं, जैसे स्पोर्ट्स की कोई चीज़ें हो गई, तीरंदाजी, कुछ और चीज़ें, बहुत कुछ दिया उन्होंने, वो तो आपने क्लियर कर ही दिया। अब ये सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि हम नहीं रिश्ता रखना चाहते वाल्मीकि दयावान से, उनका हमसे क्या, ये नहीं, वो बहुत बड़ी बात की आपने। उसमें से एक और बात, क्योंकि उन्होंने पूरी मानवता को ज्ञान दिया, उनकी जो कही हुई बातें हैं वो एक वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है। जैसे मुसलमान कहता है कि जितनी बार भी वो हज करने जाएगा, जब उसकी नीयत अच्छी नहीं है, जब उसके कर्म अच्छे नहीं है, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी उसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, उसका हज कबूल नहीं होगा, ऐसे शिक्षाएं दे रहे हैं वाल्मीकि दयावान कि तप दान और तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके बारे में आप थोड़ा खुलकर बताएं कि इसमें वो कौन सा रहस्य, कौन सी शिक्षाएं हमें देना चाहते हैं जो समाज ने सुनी नहीं। सवाल दो हो गए हैं जी, है ना। एक सवाल आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया कि लोग चाहते नहीं, असली जवाब ये नहीं है।
मैंने एक जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तो 80-90 का दशक था, और उसका रिकॉर्ड अगर आप निकालोगे तो उस वक्त जो भी सिख बच्चा कॉलेज जाता था, जी जाते दाढ़ी केस कटवा लेता था। वो कहता था धर्मेंद्र बनना है, जितेंद्र बनना है। फिर एक संत का उदय हुआ सिखों में, जिसको कहते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला। उसने ऐसा प्रचार किया कि वही नौजवान जो केस कटवाता था, पगड़ी से उसको परहेज था, उसने दाढ़ी खुली छोड़नी शुरू की, पगड़ी बांधनी शुरू की, और कॉलेज निपटाते ही वो गुरुद्वारे जाने लगा। मूवमेंट मैंने देखी यूथ में उस वक्त। जी तो इसका अर्थ क्या हुआ भी एक संत ने उनकी सोच बदल दी। ये काम होता हमारे संतों का, नेताओं का, और अगर दोनों ना करें तो बुद्धिजीवियों का। हमारे यहाँ वो तीनों फेल हो गए, तीनों को अपना काम वो भूल गए। असल में होता सारी कौमों के साथ है कि जब बुद्ध चले जाते हैं तो बुद्ध के प्रबंधक कुछ और ही चला लेते हैं। जी महावीर जैन चले जाते हैं तो उनके प्रबंधक कुछ और चला लेते हैं। अपने हिसाब से चला। हाँ, कबीर साहब के साथ भी यही हुआ। कबीर साहब ने जिन ढोंग के खिलाफ बोले, आज उनके लोग वही ढोंग चला रहे हैं। गुरु नानक देव जी के साथ भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ प्रचार हुआ नहीं। जिन संतों ने किया, लोगों ने उनको भगवान बना के स्थापित कर दिया। जैसे मैंने देखा ना राजस्थान में नवल जी की मूर्तियां लगा दी, परमात्मा की हटा दी। ये कारण भी है रिश्ता टूटने का। आज भी अगर हम पंजाब के लोग ये करें कि हम गुरु ज्ञाननाथ जी की मूर्तियां लगाएं, तो एक दूसरे अर्थों में हमारा ध्यान, हमारी आस्था परमात्मा से कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी ना। जब आगे दिखेगा नहीं हाँ, उनके अलावा कुछ। इसीलिए कहा गया एक ओंकार, यानी एक में विश्वास रखो। तो नित्य में आता है एक कहे एक ही नाम उचारू, वाल्मीकि रसना से पुकारो। अब कहीं सतगुरु ज्ञाननाथ जी ने नहीं कहा होगा कि मेरी मूर्ति बनाना और परमात्मा को न मानना। बिल्कुल। ये हम पापी हैं, हम बदलते हैं इन चीज़ों को। यही बाबा खाकशा जी के साथ हुआ, यही बाबा शंकर दास जी के साथ हुआ, यही हम सबके साथ भी हो सकता है। इसलिए मैंने अभी आपके साथ जी ऑफ रिकॉर्ड में कह रहा था कि मैंने कहा अपने सारे लोगों से कि हमारे मरने के बाद कभी हमारी मूर्ति नहीं लगेगी। अगर यह किया तो ये हमारे साथ भी, ईश्वर के साथ भी धोखा होगा। अब आपका दूसरा सवाल था, जी वो सवाल आपका क्या रहा था कि मैंने तो नहीं, सवाल दूसरा एक और है आपका। मेरा सवाल ये था कि शिक्षाएं जो थी हाँ, अच्छा, तपदान का आपका सवाल था। जी, तपदान तपदान जो तपदान वाला है उसको भी हम अधूरा समझ रहे हैं अभी। जी मैंने देखा कई प्रचारकों को बोलते हुए, वो जी। कोशिश करते हैं, मगर मैंने जब योग शिष्ट पे पहली बार पढ़ा, जी है ना, कुछ समझ में नहीं आया। ये ईमानदारी से कह रहा, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा हाँ ठीक है, कुछ बातें हैं, अच्छी बातें हैं। दूसरी बार पढ़ा, वही अच्छी बात जो मैंने एक बार पढ़ी थी, मुझे उसमें लगा इसमें दूसरा अर्थ भी है। जी उसी में एक ही नहीं है, इसके अंदर दूसरा अर्थ भी है। तीसरी बार पढ़ा तो लगा इसमें तीसरा अर्थ भी है। जी इसलिए योग शिष्ट को कहा जाता है कि सारे ग्रंथों का महाग्रंथ है। जी तो उसको समझने के लिए भी आपको बड़ा समय, बड़ी एकाग्रता, बड़ी आस्था की जरूरत है। अब ये श्लोक क्या है? श्लोक है, परमात्मा कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से भी आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, जी है ना। जी मगर उन्होंने ये नहीं कहीं कहा कि तप गलत है, जी ये नहीं कहा दान गलत है, जी ये नहीं कहा तीर्थ गलत। अब समझना यहाँ ये बिल्कुल है क्या। अब इसको आसान कर देता हूँ। एक मिसाल, आप पेपर देने जा रहे हैं, जी आप उठ के नहाए, सुस्ती उतारी, जी माँ ने दही खिलाई, उसने अपनी रस्म की, जी आपने पेन लिया, है ना, जी और रोल नंबर लिया, रख लिया जेब में, जी और दिखाया माँ को कि सब तैयारी से जा रहा हूँ। मगर किताब ना पढ़ के गए हो तो पास हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकते ना। मगर इसमें अगर ये कहें हम कि पास होने में पेन की भूमिका नहीं है, है उसकी। बिल्कुल नहाने की भूमिका भी है, जी
सुस्ती उतरेगी तो 3 घंटे पेपर दोगे ना, बिल्कुल जी। अगर सुस्ती होगी तो 3 घंटे पेपर कैसे दोगे? तो तीर्थ, ये नहीं कहा ईश्वर ने कि तीर्थ का कोई महत्व नहीं, दान का कोई महत्व नहीं। दान से तीर्थ बनते हैं, दान से, तीर्थों से ज्ञान की जो तमसा बहती है। और यहाँ हम बैठे हैं, मैं एक कप चाय भी अगर आपको दे रहा हूँ जी तो किसी दान से आई है। जी। वो कह रहे हैं वाल्मीकि भगवान के, मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि अहंकार में किया हुआ दान भी व्यर्थ चला जाता है। इसका वो मतलब दूसरे लफ्जों में। जी अब ये ज्ञान की अगली अगली आ गया, जी। ये दान की अगली डेफिनेशन जी। है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि योग शिष्ट का एक श्लोक जितनी बार पढ़ोगे जी। आपको उतने अर्थ। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को आदि कवि कहा गया, जी किस लिए? उनके पहले श्लोक से, जो उन्होंने दुनिया का पहला श्लोक, पहला गीत उनके मुख से निकला, जी। मां निषाद प्रतिष्ठा, ये जो श्लोक है पूरा, अब उसको पहले अर्थों में मैंने पढ़ा जब, तो इतना था भी एक शिकारी ने, जो शिकारी विष्णु था, जी उसने क्रोंच पक्षियों के ऊपर तीर चलाया, एक को लगा, वो तड़पता हुआ गिरा, मर गया। मगर दूसरा तड़पने लगा उसको देख देख के। जो मर गया वो तो शांत हो गया शरीर, जी। मगर जो जीवित बचा वो उसकी जुदाई में रोने लगा। तो पहले इतना ही पड़ा था भी ईश्वर ने उसको कहा कि ये नजायज है, तुमने ये क्यों मारा? वो प्रेम में मगन पक्षी थे, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। जी। प्रेम मगन शब्द भी इसीलिए लिखा, जी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। और प्रेम मगन अभी इसीलिए नहीं लिखा, अब एक तो दूसरे अर्थों में लो। जी एक स्टोरी आती है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, हमारे बच्चों को जाते पढ़ाई जाती है जी कि ईश्वर ने पहले 2 इंसान बनाए, जी। आदम और हवा, जी और एक बहुत सुंदर जगह उनको कहा यहाँ रहो, जी ये सब आपके लिए है, जी। मगर ये पेड़ का फल आप नहीं खाओ, नहीं है ना। जी और वो पेड़ का फल क्या था? वो था प्रेम, वो था मोह, वो था आकर्षण, है ना। जी तो उन्होंने तोड़ के खा लिया, तो उनके अंदर आकर्षण पैदा हो गया, काम पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। ईश्वर कह रहा है ये पाप है, मगर गलती किसकी है? गलती आदम हवा की नहीं है। मैं एक तार को नंगी छोड़ दूं, जी उसमें 10,000 का करंट जा रहा है, 240 का ही जा रहा है, और बच्चों को कहूं इसको हाथ ना लगाना, रोज कहूं हाथ ना लगाना, जी। है ना, और बच्चे लगाएं भी ना, मगर एक दिन उनकी स्टिक जुड़ जाए वहां जाके, बिल्कुल जी। तो गलती किसकी है? गलती मेरी है कि मैंने उसे कवर क्यों नहीं किया। बिल्कुल जी। तो ईश्वर गलती कर नहीं सकता, ये कहानी गलत है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का पहला श्लोक कहता है कि प्रेम जरूरी है, प्रेम पाप नहीं है। बिल्कुल। वो एक जगह एक भी बात ये भी कह रहे हैं कि प्रेम सिर्फ मानवता में नहीं होना चाहिए, सिर्फ जीवों से भी जो यही श्लोक कह रहा हूँ, वो यही श्लोक कह रहा है। उन्होंने वो लिखा किसके ऊपर श्लोक? जीव की हत्या। जी यही श्लोक उसका कह रहा है कि प्रेम इंसानों में नहीं, सुविधा में नहीं, कि जो आपकी सुविधा में हो, बाकियों की भी सुविधा है, बिल्कुल। उसको भी देखना है। कबीर साहब भी कहते, बार बार प्रेम की बात करते हैं, वो कह रहे प्रेम गली, परमात्मा के द्वार को उन्होंने प्रेम का रास्ता रख दिया। वो कह रहे प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाई, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं नाही। वो जो आपने बात की थी, अहंकार में दिया हुआ दान, जब मैं है तो अहंकार है, ये अहंकार है। तो अहंकार खत्म होगा तो प्रेम पैदा होगा, और संसार प्रेम से चलेगा, अहंकार से नहीं चलेगा। आज जितने युद्ध हो रहे हैं, रूस की लड़ाई हो रही है, अभी अमेरिका ने कई देशों के ऊपर दादागिरी कर दी है, ये अहंकार है आदमी का। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। हाँ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਏ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ, ਵਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹਲਚਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਵਾਨ ਦੇ ਪਾਵਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਸਵਿਸ ਘੁੰਮਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ, ਫਰਾਂਸ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜੀ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ। ਜੀ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਣਿਆ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨ ਚੋਂ ਗਣਿਤ ਕੱਢ ਦੋ, ਜੀ, ਮੈਥ, ਜੀ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੀ, ਗਰਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲੇਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 325 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੇਵਲ ਮੈਥ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਅਲਜੈਬਰਾ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ, ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ V.A.K. ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅਈਅਰ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦਾ ਕਾਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ 325 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਣਿਤ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਹਨਾ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੋਲੰਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ, ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ,
ਡਰਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਤੇ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤਰਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਹਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਿਆਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੈਤਿਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਨਵ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਲੀ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।